ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں آپ کو افسوسناک خبر دیتے چلیں کہ کراچی کے علاقے جیل چورنگی پر واقع کثیر المنزلہ عمارت میں قائم نجی سپر مارٹ میں آتش زدگی کا واقعہ، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 3 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ نیوی، کراچی پورٹ ٹرسٹ، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں اب بھی مصروف ہے، جبکہ دھواں زیادہ ہونے کے باعث فائر فائٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آتش زدگی کے بعد شہر بھر کے واٹر ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی تھی۔ ریسکیو آپریشن میں معاونت کے لیے پولیس رینجرز، ضلعی اور بلدیاتی انتظامیہ بھی فعال دکھائی دے رہی ہے۔ عمارت کی بالائی منزلوں پر موجود رہائشی فلیٹس کو بھی خالی کرا لیا گیا۔ کراچی کے علاقے جیل چورنگی پر کثیر المنزلہ عمارت میں قائم نجی سپر مارٹ میں آتش زدگی کا واقعہ، ایک شخص جاں بحق، 3 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ نیوی، KPT، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ دھواں زیادہ ہونے کے باعث فائر فائٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آتش زدگی کے بعد شہر بھر کے واٹر ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ ریسکیو آپریشن میں معاونت کے لیے پولیس رینجرز، ضلعی انتظامیہ بھی فعال دکھائی دے رہی ہے۔ عمارت کی بالائی منزلوں پر موجود رہائشی فلیٹس کو بھی خالی کرا دیا گیا۔ کراچی کے علاقے جیل چورنگی پر کثیر المنزلہ عمارت میں قائم نجی سپر مارکیٹ میں آتش زدگی کا واقعہ، ایک شخص جاں بحق، 3 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ نیوی، KPT، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں اب بھی مصروف ہے۔ دھواں زیادہ ہونے کے باعث فائر فائٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آتش زدگی کے بعد شہر بھر کے واٹر ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ریسکیو آپریشن میں معاونت کے لیے پولیس رینجرز، ضلعی اور بلدیاتی انتظامیہ بھی فعال دکھائی دے رہی ہے، جبکہ عمارت کے بالائی منزلوں پر موجود رہائشی فلیٹس کو بھی خالی کرا لیا گیا۔ افسوسناک خبر ہے کہ کراچی کے علاقے جیل چورنگی پر کثیر المنزلہ عمارت میں قائم نجی سپر مارکیٹ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 3 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ نیوی، KPT، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ دھواں زیادہ ہونے کے باعث فائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آتش زدگی کے بعد شہر بھر کے واٹر ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ریسکیو آپریشن میں معاونت کے لیے پولیس رینجرز، ضلعی اور بلدیاتی انتظامیہ بھی متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ عمارت کی بالائی منزلوں پر موجود رہائشی فلیٹس کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ جیل چورنگی پر واقع سپر مارٹ میں لگی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا۔ صبح 11 بجے لگنے والی آگ تاحال بے قابو ہے۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ بجھانے کے لیے فائر بال کا استعمال بھی شروع کر دیا، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آگ بجھانے میں مزید 12 سے 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں، جبکہ یہ شبہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اسٹور انتظامیہ کے پاس آگ بجھانے کا مناسب انتظام نہیں تھا۔ کراچی کے علاقے جیل چورنگی پر کثیر المنزلہ عمارت میں قائم نجی سپر مارکیٹ میں آتش زدگی کا واقعہ، آتش زدگی کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ 3 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ نیوی، KPT، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ دھواں زیادہ ہونے کے باعث فائر فائٹرز کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آتش زدگی کے بعد شہر بھر کے واٹر ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ریسکیو آپریشن میں معاونت کے لیے پولیس رینجرز، ضلعی اور بلدیاتی انتظامیہ بھی متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ عمارت کی بالائی منزلوں پر موجود رہائشی فلیٹس کو بھی خالی کرا لیا گیا۔ کراچی کے علاقے جیل چورنگی پر کثیر المنزلہ عمارت میں قائم نجی ڈپارٹمنٹل اسٹور کے بیسمنٹ میں قائم ویئر ہاؤس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ آتش زدگی کے نتیجے میں دم گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق، جس کی لاش پہلی منزل سے ملی، جبکہ 3 افراد دھوئیں کے باعث بے ہوش ہو گئے۔ آتش زدگی کی اطلاع پر شہر بھر سے فائر ٹینڈرز طلب کر لیے گئے۔ پاکستان رینجرز سندھ اور پاک بحریہ کی ریسکیو ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں۔ پاکستان نیوی، KPT اور KMC محکمہ فائر بریگیڈ کے فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے جائے وقوع کا دورہ کر کے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کہ عمارت میں موجود افراد کو نکالا جا چکا ہے۔ SBC افسران سے عمارت کا NOC منگوایا ہے۔ ہم ہر زاویے سے اس کی انویسٹیگیشن کریں گے۔ DC صاحب اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گے۔ جیل چورنگی پہ یہ جو بلڈنگ ہے سمیہ برج ویو، اس پر موجود ہیں
एक सुपर मार्केट थी जिसके बेसमेंट पे तकरीबन कोई 11:16 पे आग लगी। KMC को, फायर ब्रिगेड को मुतला किया गया और अगले 5 से 6 मिनट के अंदर यहाँ पर फायर ब्रिगेड का जो अमला था वो आ गया था। ये बेसमेंट में आग लगी है, जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है, और अभी तक जो एफर्ट की गई है उससे फ़ायदा ये हुआ है कि आग को मज़ीद फैलने नहीं दिया गया और अभी तक बेसमेंट में कन्फाइंड है। जो ऊपर बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनको इवैक्यूएट करा लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल का कहना था कि 18 मंजिला इमारत का पार्किंग एरिया गोदाम के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो रहा था, तहकीकात कर रहे हैं। पार्किंग एरिया को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करने में जो मुलव्विस पाया गया, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक तो कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। जेल इंतजामिया से हम लोग राब्ते में हैं, उन्होंने यही बताया है कि अभी तक इसके अंदर कोई भी हमारा बंदा मिसिंग नहीं है। एक बंदा था जिसको हमने जान लिया गया। इसके अलावा कपड़े के गोदाम में आग लगी हुई है बेसमेंट में, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, मगर धुआं इतना ज़्यादा है कि अभी तक कुछ आइडिया नहीं हो रहा है कि किस किस्म की, कितने डिग्री की आग है और क्या पोजीशन है। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई की है, क्या इमारत को खाली करवा दी है? जी, इमारत में ऊपर धुआं जा नहीं रहा फिलहाल। बाकी जो है हमने जितने भी सेफ्टी मेजर्स थे वो ले लिए हैं। अभी तक कोई माली जानी नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। आतिशज़दगी के बाद वाटर बोर्ड ने वाटर हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाकिस्तान नेवी, कराची पोर्ट ट्रस्ट और KMC महकमा फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुआवनत के लिए पुलिस, रेंजर्स, जिले और बल्दियाती इंतजामिया भी फाल किरदार अदा कर रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कराची के इलाके जेल चौरंगी पर कसीरुल मंजिला इमारत में कायम निजी सुपर मार्केट में आतिशज़दगी का वाक़या। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर मुबीर अहमद कहते हैं कि आग बुझाने में मजीद 12 से 24 घंटे लग सकते हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग बुझाने के लिए फायरबॉल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इस और इंतजामिया के पास आग बुझाने का मुनासिब इंतजाम नहीं था। जेल चौरंगी पर वाक़े सुपर मार्केट में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। सुबह 11 बजे लगने वाली आग ताहाल बेकाबू है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग बुझाने के लिए फायरबॉल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद कहते हैं कि आग बुझाने में मजीद 12 से 24 घंटे लग सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि स्टोर इंतजामिया के पास आग बुझाने का मुनासिब इंतजाम नहीं था। जबकि जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आग लगने का वाकया है, जबकि मुतासर इमारत को खतरनाक भी करार दे दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि अतराफ की इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है। जबकि पुलिस हुकाम ने भी कहा कि मुतासर इमारत को जदीद आलात से चेक किया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर मुबीन अहमद कहते हैं कि निजी सुपरमार्केट में आग बुझाने में मजीद 12 से 24 घंटे लग सकते हैं। इस वक्त निजी मार्ट की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। हफीज अंसारी बताएगा, आग पर किस हद तक काबू पाया जा चुका है? बिल्कुल, आज सुबह जो ये जेल चौरंगी के पास वाक़या चेस शॉपिंग मॉल में आग लगी थी। अब तक हम देख रहे हैं कि वहाँ सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, लेकिन असल सूरत हाल जो है हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद, इनसे जानना चाहेंगे क्या 13 घंटे हो गए अब तक जो है बेसमेंट में आग लगी, इसकी क्या हिस्ट्री है? बेसमेंट में जो आग लगी थी किस तरह काबू पाया जाता है? बेसमेंट की आग अमूमन वक्त लेती है क्योंकि बेसमेंट में दाखिली रास्ते नहीं होते, और अगर बेसमेंट को प्रॉपर जिस मकसद के लिए बनाया जाता है बेसमेंट, तो उसमें इस्तेमाल किया जाए तो ये वाक़यात रूनुमा ना हो। ये किसी के वेयर हाउस के लिए नहीं बनते हैं, और अगर इनको बनाना है वेयर हाउस तो फिर इंतज़ाम रखें उस पर दाखिली और खारजी रास्ते का, और फायर फाइटिंग का इंतज़ाम भी वहाँ रखना चाहिए। अब क्या सूरत हाल है अभी आग पर आपका? नहीं, आग सुबह तक चलेगी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि बेसमेंट की आग वक्त लेती है क्योंकि रास्ते नहीं होते इसमें। अब जहाँ से ये कार्गो जाता है, सामान रखा जाता है, वहीं से फायर फाइटिंग हो रही है। रास्ता भी वही है कि उनका कार्गो भी वहीं से निकलता है। अब तक कितने फायर टेंडर इधर का वर्किंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं? सिंध रेंजर्स भी ताउन कर रहे हैं। इस बार मेरे अपने सिटी फायर सर्विस के तकरीबन 13 फायर टेंडर यहाँ मौजूद है। स्नार का रेस्क्यू भी मौजूद है, और वाटर बोर्ड के टैंकर जो है यहाँ पानी फराहम कर रहे हैं। लेकिन कमिश्नर कराची ने यहाँ पे नेवी की गाड़ी भी भेज दी है, वो जो हमें पानी दे रही है, लेकिन पानी हमें वाटर बोर्ड से भी मिल रहा है, और वो भी काम कर रहे हैं, नेवी वाले भी काम कर रहे हैं। कमिश्नर कराची की हिदायत पे मेरा ख्याल बहरिया टाउन से भी एक गाड़ी आ गई है अपने अमले के साथ, ताकि फ्रेश अमला मतलब इसमें हेल्प कर सके KMC की।
बिल्कुल, जैसे कि चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मुबीन अहमद मौजूद थे, इन्होंने बताया इस आग के हवाले से कि सुबह तक जो है इस आग पर काबू पाया जा सकता है, या कि नहीं ये वर्किंग का अमल जो है अभी जारी रहेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर के बेसमेंट का जैसे कि बताया कि बेसमेंट की हवाले से जब आग लगती है तो उसको 20 से 22 घंटे जो है लग जाते हैं बुझाने पर। 20 से 22 घंटे यानी कि कोई दाखिली रास्ता ऐसा नहीं होता है आग या धुएं के निकलने का, जिसकी वजह से आग लगने के बाद जो है इंतहाई मुश्किल होती है जो फायर वर्कर होते हैं उनको अंदर जाने में, आग बुझाने में। यही सूरत हाल जो है यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 फायर टेंडर जो है यहाँ पर पूरी कराची से जो है फायर टेंडर बुला लिए गए थे, अपने यहाँ पर जो है वो फ़राइज़ अंजाम देते हुए अमले के साथ नज़र आ रहे हैं। साथ में रेंजर्स की मावनत भी है और नेवी की भी मावनत है और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से पानी की भी फराहमी की जा रही है। लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है यकीनन ऐसे गैर कानूनी जो बेसमेंट जो कि पार्किंग के लिए बनाए जाते हैं, बेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर कारोबारी मराकज़ बना दिए जाते हैं, तो यकीनन जो है ये नुकसानदेह साबित होते हैं आवाम के लिए, शहरियों के लिए, उनके जानों के लिए। अब सूरत हाल यहाँ अगर 18 मंजिला ये इमारत है, इसका स्ट्रक्चर यकीनन अगर बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर जैसे कि आग भड़कती और अब तक लगी हुई है तो यकीनन जो है वो कमज़ोर पड़ता है या मुतासिर होता है, तो बिल्डिंग के मुतासिर होने का खदशा है। इस बिल्डिंग के तमाम जो है रहायशियों को एहतियाती तौर पर जो है इब्तिदा में ही निकाल लिया गया था। अब शहर कराची के अंदर एक बिल्डिंग, एक आग और जो है हम देख रहे हैं कि इस वाक़े की नज़र होती नज़र आ रही है। और अब शहर कराची के आवाम जो है लेकिन इस बात पर फिक्रमंद नज़र आते हैं कि अगर वो रहाइश इख्तियार करें, ऐसे अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जहाँ के बेसमेंट के अंदर इस किस्म की जो है गैर कानूनी जो कारोबारी मराकज़ कायम किए जाते हैं, तो यकीनन जो है उनकी ज़िंदगियों के लिए न सिर्फ बल्कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी ख़तरा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ अंसारी। शहर कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आग लगने का वाक़या, मुतासरा इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अतराफ की इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है। मुतासरा इमारत को जदीद आलात से चेक किया गया। कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आग लगने का वाक़या, मुतासरा इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया, जबकि पुलिस हुक्काम के मुताबिक अतराफ की इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है। मुतासरा इमारत को जदीद आलात से चेक किया गया है। कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आग लगने का वाक़या, मुतासरा इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अतराफ की इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है। मुतासरा इमारत को जदीद आलात से चेक किया गया। जेल चौरंगी पर कायम इमारत की बेसमेंट में आतिशज़दगी का ये मामला है, जबकि मुतासरा इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अतराफ की इमारतों को भी इस वक्त खाली कराया जा रहा है, जबकि मुतासरा इमारत को जदीद आलात से चेक किया जा रहा है। कराची के इलाके जेल चौरंगी पर कसीरुल मंजर इमारत में कायम निजी सुपरमार्केट में आतिशज़दगी का मामला, एक शख्स जाबहक 3 अफराद की हालत गैर हो गई। नेवी केपीटी फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है, जबकि धुआं ज्यादा होने के बायस फायर फाइटर्स को मुश्किलात का भी सामना है। आतिशज़दगी के बाद शहर भर के वाटर हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुआवनत के लिए पुलिस, रेंजर्स, जिले और बल्दियाती इंतजामिया भी मुतहरिक दिखाई दे रही है, जबकि इमारत की बालाई मंजिलों पर मौजूद रिहायशी फ्लैट्स को खाली करा दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर मुबीन अहमद ने इस हवाले से कहा कि आग बुझाने पर मजीद 12 से 24 घंटे लग सकते हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने आग बुझाने के लिए फायर बॉल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। स्टोर इंतजामिया के पास आग बुझाने का मुनासिब इंतजाम नहीं था। कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आग लगने का वाकया, मुतासिरा इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब ने। सर, सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे। सर, पार्किंग की जगह पर गोदाम बना दिया गया, गफलत के बायस इतना बड़ा हादसा रोनुमा हो गया, कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार जो है वो तो देखें, वो स्टोर खुद है ना, जिन्होंने इलीगली वहाँ पे वेयर हाउस बनाया हुआ था। अब इसकी पूरी तहकीकात हो रही है और लाजमी बात है इस तहकीकात के बाद जो लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक। अच्छा इकबाल मेमन साहब, तहकीकात हो रही है, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या जो इस तमाम तरह चीज़ में जो मुताल्लिक़ इदारे मुलव्विस थे इस गफलत में, क्या उनको उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा? और वहाँ जो रिहायशी इमारत में लोग मौजूद थे उनको कहाँ मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी? अच्छा, फिलहाल तो उनको जब हमने
एवेक्यूएशन कराई, तो वो फिर पहले तो नीचे आए, जिनको हमने टेम्पररी वहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की थी, वहाँ पे लोग आए। उसके बाद लोग फिर उनकी अपनी मर्जी ये थी कि हम अपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर पे चले जाए। तो उसी तरह हुआ कि वो जो फैमिलीज थी वो चली गई अपने अपने जहाँ पे उन्होंने अपनी पर्सनल अरेंजमेंट की हुई थी वहाँ चले गए। तो बाकी सवाल ये होता है कि जो भी क्या जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक्शन होगा और होना भी चाहिए। ये एक हमारे लिए एक वो बात है कि इससे हमें सबक सीखना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो बाकी लोगों को भी ये एक वो होगा कि रिस्ट्रेंट करने के लिए आसानी होगी कि बाकी लोग भी इस नतीजे को खुद ही फिर वो ख़त्म करते हैं। लेकिन इन द सेम टाइम मैं खुद पूरे डिवीजन के लिए ऑर्डर करने जा रहा हूँ कि सारे डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने ज़िले के अंदर इस तरह के अगर कोई स्टोर है या कोई भी ऐसी फैसिलिटी है उसे जाके चेक करें और ये देखें कि कोई इलीगली वहाँ पे उसकी कोई यूजेज जो नहीं है। क्योंकि अगर बिल्डिंग के अंदर कोई इस तरह का बेसमेंट जिसमें कार पार्किंग है या कोई और फैसिलिटी बनाई गई है डिज़ाइन के मुताबिक और वहाँ पे जो यूज़र है वो उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो इसको देखा जाए। चले इकबाल मेमन साहब, ये तो एक ऐसा इक़दाम है, बहुत अच्छा जो है कदम उठाया है ये इदारों की जानिब से, आपकी जानिब से। लेकिन सर SBCA ने भी ये बात तस्लीम की है कि पार्किंग की जगह पर गोदाम बनाया गया है। तो सर क्या आप ये नहीं समझते कोई मुताल्लिका इदारा भी इसमें मुलव्विस होगा? जैसे मैंने कहा ना कि तहकीकात होगी तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अब लाजमी बात है, आप आउटसाइड आप कह नहीं सकते, विदाउट एनी एविडेंस आप कह नहीं सकते ना कि कौन मुलव्विस है या कोई मुलव्विस नहीं है। तो ये लोग हमारे साथ ही हैं। ज़ाहिर बात आपने देखा कि आप इस साइट पे होंगे, डेफिनेटली आप देखा होगा कि ये इदारे सारे SBCA के साथ भी वहाँ पे मौजूद थे हमारे साथ। मतलब सारे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं इस जो सिचुएशन को निपटने के लिए। तो हमारे साथ वो भी ताउन करेंगे और अपना जो उनका डिज़ाइन है वो हमसे शेयर, उन्होंने आपके इंजीनियर भी आए हुए थे, आर्किटेक्ट जिसने ये किया हुआ है, इंजीनियर अपने आए हुए थे, जैसे वहाँ भी मौजूद थे। तो ये है कि वो सारे लोग ताउन करेंगे और लाजमी बात है, ये जिम्मेदारी वाली बात है। इतना बड़ा वाक़या हो गया तो ये तो कोई नहीं हो सकता कि उससे फिर आप छुपें या ये करें कि आप कोई चीज़ हाइड करें। अच्छा इकबाल मेमन साहब, इस तरह के स्टोर्स और कसीरुल मंजिला इमारात में अक्सर देखा जाता है कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं होते, तो इस हवाले से कब कोई अहकामात या हिदायत जारी की जाएंगी? उस वक्त तो देखें ना, ये इसमें जो डिज़ाइन होता है उसमें होती हैं ये चीज़ें, बनती हैं या नहीं बनती ये अलग बात है। और लेकिन सर बिल्डर खा जाता है। जी जी जी, क्या कह रहे हैं सर? बिल्डर खा जाता है, नक्शे में तो पास हो जाता है लेकिन जब इमारत बना दी जाती है। यही बात है कि अब अगर खा जाता है तो ये फिर जो या तो रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए SBCA की तरफ से, जो कंसर्न इदारा है, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और निशानदेही होनी चाहिए कि इसमें ये चीज़ गलत हो गई है, इसको ठीक किया जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर कभी भी रैंडम आप किसी भी बिल्डिंग में जाके मॉनिटरिंग जाके करते हैं और उसमें अगर ये बात सामने आती है तो उसमें सजा देनी चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए। अगर इस बिल्डिंग में ये तो नहीं हुआ डेफिनेटली, तभी ये बात अब इतना बड़ा वाकया हो गया है। तो अब इनको सबको जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको लाजमी बात इसका जवाब तो देना पड़ेगा। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब, बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके जेल चौरंगी पर कायम इमारत की बेसमेंट में आतिशज़दगी का मामला। डिपार्टमेंटल स्टोर ने गैर कानूनी तौर पर पार्किंग की जगह गोदाम बनाया। ज़राए SBCA के मुताबिक पार्किंग की जगह पक्की, तामीरात से आग बुझाने में मुश्किलात हुई, जबकि नक्शे के मुताबिक पार्किंग की जगह है, गोदाम नहीं है। SBCA का ये भी कहना है कि इंजीनियर्स मुआयना करेंगे कि बिल्डिंग रिहाइश के काबिल है भी या नहीं। जेल चौरंगी पर कायम इमारत की बेसमेंट में आतिशज़दगी का मामला। डिपार्टमेंटल स्टोर ने गैर कानूनी तौर पर पार्किंग की जगह गोदाम बनाया। ज़राए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक पार्किंग की जगह पक्की, तामीरात से आग बुझाने में मुश्किलात हुई। नक्शे के मुताबिक पार्किंग की जगह है, गोदाम की जगह नहीं। इंजीनियर्स मुआयना करेंगे बिल्डिंग रिहाइश के काबिल है भी या नहीं है।
कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आग लगने का वाकया। आग से जाबाहक नौजवान की शनाख्त अब्दुल वसी के नाम से हुई। नौजवान अब्दुल वसी मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने आया था। अब्दुल वसी के भाई का कहना है कि अब्दुल वसी जामिया कराची के शोबा इकनॉमिक्स का तालिब इल्म था, जबकि अब्दुल वसी गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था। जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में आग लगने का वाकया। आग से जाबाहक नौजवान की शनाख्त अब्दुल वसी के नाम से हुई है। अब्दुल वसी के भाई का कहना है कि नौजवान अब्दुल वसी मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने आया था। अब्दुल वसी जामिया कराची शोबा इकनॉमिक्स का तालिब इल्म था। अब्दुल वसी गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था। कराची के इलाके जेल चौरंगी पर कसीर उल मंजिला इमारत में कायम निजी सुपरमार्केट में आतिशज़दगी का मामला। एक शख्स जाबाहक हो गया, जबकि आग से जाबाहक नौजवान की शनाख्त अब्दुल वसी के नाम से हुई, जो कि मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने आया था। अब्दुल वसी जामिया कराची शोबा इकनॉमिक्स का तालिब इल्म था। अब्दुल वसी गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था। तर्जुमान सिंध हुकूमत व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आतिशज़दगी के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। जेल चौरंगी पर निजी सुपरमार्केट में लगने वाली आग पर काबू के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना। कहते हैं कि इमारत में मौजूद अफराद को निकाला जा चुका है। SBC अफसरान से बात की है, इमारत का NOC मंगवाया है। हम हर जाविये से इसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। DC साहब इस मामले की मुकम्मल तहकीकात भी करेंगे। इसी हवाले से आपको बताएं कि जिला इंतजामिया ने पार्किंग एरिया में गोदाम बनाने में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की राजा तारिक हुसैन और असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल ने जाए वक़ूआ का मुआयना करके तफसीलात हासिल की। अस्मा बतूल कहती हैं कि 18 मंजिला इमारत का पार्किंग एरिया गोदाम के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो रहा था, तहकीकात कर रहे हैं। पार्किंग एरिया को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करने में जो भी मुलव्विस पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह एक घंटा डेढ़ पहले आग लगी थी स्टोर के बेस में, जहाँ पर इनका कुछ सामान पड़ा हुआ है। और जब हम आए तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। अल्लाह के करम से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और अभी तक आग पे कंट्रोल पाया हुआ है और आग बढ़ी नहीं है। ऊपर कुछ लोग थे जो रहायश पजीर थे और वो निकलना नहीं चाहते थे, तो हम आए, मैं खुद गया ऊपर और तकरीबन सारे लोग जो है बाहर निकाले। अच्छा सर, किसी के बेहोश होने की या किसी के एम्प्लॉय के बेहोश होने की इतलात हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह की तरफ से कोई भी इसी तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ है। हमने सबको बाहिफाजत पाया। और अंदर कोई भी नहीं है फिलहाल? अंदर एक पेशेंट है जो वो नहीं सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते थे, तो उसके लिए टीमें गई हैं। विदिन 5 to 10 मिनट्स इंशाल्लाह वो ठीक है सर। तक कोई वजह सामने आई है या कोई कैजुअलिटीज हुई है अभी आपकी रिपोर्ट के मुताबिक? अल्लाह की तरफ से कोई कैजुअलिटी सामने नहीं आई। कुछ लोग थे ऊपर जो नहीं निकल रहे थे, खुद फंसे नहीं थे, क्योंकि अभी तक अल्लाह की तरफ से आग ऊपर नहीं फैली है। मैं खुद गया, रेंजर्स वाले थे, पुलिस थी, पूरी टीम थी, रेस्क्यू वाले थे, हिंदी वाले थे, हमने सबको आराम से निकाल लिया। अच्छा ये बताइए कि क्या आग पर इस पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी, या सिर्फ ये धुआं जो है वो एग्जॉस्ट करके बाहर निकाला जाएगा? नहीं, ये धुआं भी एग्जॉस्ट करके बाहर निकल रहा है और हमारी जो फायर ब्रिगेड है वो। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का जेल चौरंगी पर आतिशज़दगी की जगह का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। कहते हैं कि DMCs जहां तक मुमकिन हो रहा है अपनी खिदमात पेश कर रही है। आइस बॉल्स की मदद से आग को बुझाने में मुआवनत फराहम की जा रही है। बल्दिया उज़्मा कराची के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश करके जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि जेल चौरंगी पर निजी सुपर स्टोर में लगने वाली आग के बाद रेस्क्यू का काम तेजी से सरंजाम दिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने जेल चौरंगी पर निजी सुपर स्टोर में रात गए तक जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमदादी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आइस बॉल्स की मदद से आग को बुझाने में मुआवनत फराहम की जा रही है।
बल्दिया उज़्मा कराची के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश करके जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मुर्तज़ा वहाब से मुकम्मल राबते में है और बाहमी कोऑर्डिनेशन के जरिए रेस्क्यू के काम सरअंजाम दे रहे हैं। रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि DMCs जहां तक मुमकिन हो रहा है अपनी खिदमात पेश कर रही है। बल्दिया उज़्मा कराची के फायर टेंडर्स स्नारकल दिन से ताहाल रेस्क्यू के काम कर रहे हैं और मुकम्मल काबू पाने तक वो अपने फराइज सरअंजाम देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने के साथ किसी भी नुकसान से बचा जाए। मैं और मेरे अफसरान यहाँ मौजूद हैं और सूरत हाल को आज खुद मॉनिटर कर रहे हैं और हम पुरुमीद हैं कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर MS तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज भुट्टो भी मौजूद थे। इमरजेंसी के लिए कॉल एरिया को देती है, ऐसा कर देती है कि आगे जाने का एक मौका मिलता है रेस्क्यू करने के लिए। ये हमने अभी मंगाए, इस्तेमाल कर रहे हैं और इंशाल्लाह देखते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध हुकूमत को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ किए हुए मुआहदे पर मनोअन अमल करने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को तब्दील किए जाने का इम्कान है, जबकि शहर कराची का एडमिनिस्ट्रेटर MQM पाकिस्तान का नामजद करदा होगा। MQM राबता कमेटी के इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची के नाम पर गौर भी किया गया। MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम का नाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए तजवीज़ किया गया है। आसिफ अली जरदारी की सिंध हुकूमत को MQM से मुआहदे पर मनोअन अमल करने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को तब्दील किए जाने का इम्कान है। शहर कराची का एडमिनिस्ट्रेटर MQM का नामजद करदा होगा। MQM राबता कमेटी के इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची के नाम पर गौर। MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम का नाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए तजवीज़ किया गया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज का संगे बुनियाद रख दिया है। KMC अस्पतालों को भी हुकूमती ग्रांट दिलवाने का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 6 माह में नए फ्लोर की तामीर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा विजन आम आवाम को मयारी और तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज का संगे बुनियाद रख दिया। KMC अस्पतालों को भी हुकूमती ग्रांट दिलवाने का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 6 माह में नए फ्लोर की तामीर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारा विजन आम आवाम को मयारी और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज का संगे बुनियाद रख दिया है। KMC अस्पतालों को भी हुकूमती ग्रांट दिलवाने का ऐलान कर दिया। नहीं करनी बल्कि डेवलपमेंट को सस्टेन करना है, तो उसका जो सबसे अच्छा मॉडल है वो PPP है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसके अंदर आपके जो सरकारी वसाइल हैं, सरकारी आपके असासे हैं, उनको आप खुश उसलूबी के साथ प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से, प्राइवेट सेक्टर की मदद के साथ आप आवाम की बेहतरीन मफाद में चला सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एक उसका एक बेहतरीन मिसाल है कि ये असासा KMC का है, बल्दिया उज़्मा कराची का है, कराची की आवाम का है, लेकिन KMC ने मुनासिब समझा कि इसको प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के, फिलैंथ्रोपिस्ट के इश्तराक से चलाया जाए। और आज आपको एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में नज़र आती है कि लोगों का हकीकी तौर पर, कागजात में नहीं बट हकीकी तौर पर आपको मुफ्त इलाज होते हुए नज़र आ रहा है। और ये एक ऐसा इलाज है जो कि बड़ा महंगा है और किडनी की बीमारी हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको KMC और इस प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक के साथ आवाम के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल किया जा रहा है।
اور ابھی عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں شہر کراچی کے علاقے ناظم آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے سندھ حکومت اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک تعمیرات سے بھی روک دیا۔ سب رجسٹرار کو مذکورہ پلاٹ کی لیز اور رجسٹریشن سے بھی روک دیا گیا۔ عدالت کا ایس بی سی اے کو فریقین کا موقف سن کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ایس بی سی اے فوری طور پر عدالتی حکم پر عمل درآمد کرے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ناظم آباد بلاک 5 میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک پلاٹ نمبر 5E14/23 پر غیر قانونی تعمیرات سے روکتے ہوئے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے ایس بی سی اے کو تمام فریقین کا موقف سن کر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سندھ حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے سب رجسٹرار کو پلاٹ کی رجسٹریشن اور ایس بی سی اے کو بلڈنگ کو کمپلیشن پلان جاری کرنے سے بھی روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایس بی سی اے سے 2 ماہ میں تفصیل بھی طلب کر لی۔ درخواست گزار نے عدالت کے سامنے موقف پیش کیا کہ میرے پڑوس میں بلڈنگ پلان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گراؤنڈ پلس 4 اسٹوری بلڈنگ تعمیر کی جا رہی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل اکبر آوان نے درخواست میں عدالت سے استدعا کی کہ ایس بی سی اے کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کا کراچی کے ضلع شرقی اور وسطی میں گرینڈ آپریشن گلشن اقبال میں نالوں پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئیں، جبکہ وائٹ ہاؤس اور اس کے گرد و نواح میں نالے پر قائم کچی پکی تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ فاطمہ جناح کالونی میں کارروائی کے دوران ٹھیلے پتھارے اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ عزیز آباد آغا خان یونیورسٹی اور طب اسپتال کے اطراف بھی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ شاہراہوں پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے کیبن اور مختلف اسٹالز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے نے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی ہدایت پر گلشن اقبال ڈویژن میں نالے پر قائم تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائیاں کی۔ گلشن اقبال ڈویژن میں کارروائی کے دوران وائٹ ہاؤس، بینگلوز اور گرد و نواح میں نالے پر قائم کچی پکی تجاوزات کو بھاری مشینری کی مدد سے مسمار کیا گیا۔ انہدامی کارروائیوں کی نگرانی ڈائریکٹر رئیس خورشید مکرم اور ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا کی زیر نگرانی سر انجام دی گئی، جس کے دوران علاقہ پولیس اور سٹی وارڈن کی نفری بھی تعینات رہی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جمشید ڈویژن میں ڈپٹی ڈائریکٹر امیر لاکھانی کی زیر نگرانی فاطمہ جناح کالونی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات مسمار کر کے ٹھیلے پتھارے اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ ضلع وسطی میں عزیز آباد آغا خان یونیورسٹی اور طب اسپتال کے اطراف بھی تجاوزات کا خاتمہ کر کے شاہراہوں پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے کیبن اور مختلف اسٹال ضبط کر لیے گئے۔ سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی کے 7 اضلاع میں روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے آج شہر کراچی کے 2 ڈسٹرکٹ میں بہت بڑی کارروائی کی ہے، بھاری مشینری کا استعمال کیا ہے۔ سب سے بڑی کارروائی ہماری جو ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 2 مقامات پہ کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر گلشن اقبال ڈویژن کے اندر جو ہے جو وائٹ بنگلوز کے طرف نالوں پہ جو تجاوزات تھی اس کا خاتمہ کیا۔ اس کے طرف میں جتنی بھی تجاوزات تھی کچی پکی بھاری مشینری کے ساتھ ان تمام کا صفایا کیا گیا۔ بالکل سیم اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جمشید روڈ پہ فاطمہ جناح کالونی پہ بھی تمام تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، جو روڈ اور فٹ پاتھ کے اوپر تجاوزات تھی تمام کو ضبط کیا گیا۔ اسی ہماری جو بڑی کارروائی ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ٹبا ہاسپٹل اور آغا خان یونیورسٹی روڈ کے اطراف پہ جتنے بھی تجاوزات تھی ان تمام کو جو ہے وہ بھاری تعداد میں ضبط کیے گئے۔ ان تمام کارروائیوں میں ہمارے ساتھ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر علاقہ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے افسران نے شاہراہوں اور فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے افراد کو متنبہ کیا کہ تجاوزات کا از خود خاتمہ کرنے بصورت دیگر تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سرجانی ٹاؤن کے رہائشی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پانی کا بحران، واٹر بورڈ افسران نے مبینہ طور پر پانی فروخت کرنا بھی شروع کر دیا۔
वाटर बोर्ड का एक्सीएन नासिर सिद्दीकी की मुबैना सरपरस्ती में वॉल मैन्स की मनमानियां जारी हैं, जबकि मुबैना रिश्वत के एवज मनपसंद इलाकों को पानी की फराहमी की जा रही है। इलाका मकीन कहते हैं कि सुरजानी टाउन में महीनों पानी नहीं आता। वाटर बोर्ड अफसरान रिश्वत लेने के बावजूद हमें पानी नहीं देते। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पानी का बहरान वाटर बोर्ड अफसरान ने मुबैना तौर पर पानी फरोख्त करना भी शुरू कर दिया। वाटर बोर्ड का एक्सीएन नासिर सिद्दीकी मुबैना सरपरस्ती में वॉल मैन की मनमानियां जारी। मुबैना रिश्वत के एवज मनपसंद इलाकों को पानी की फराहमी जारी है, जबकि इलाका मकीन कहते हैं कि सुरजानी टाउन में महीनों पानी नहीं आता, जबकि वाटर बोर्ड के अफसरान रिश्वत लेने के बावजूद हमें पानी नहीं देते। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी डॉक्टर अफशरुबाब सैयद ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और अमन का दारोमदार बेहतर निज़ाम तालीम और तरीक़ा तदरीस पर मुनहसर है। हमारी अव्वलीन तरजीह है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के स्कूलों में तालीम का मयार मजीद बुलंदी की तरफ ले जाया जाए। जस्टिस हेल्पलाइन के सरबरा एडवोकेट नदीम शेख की क़यादत में आला सतही वफ़द से मुलाकात के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी डॉक्टर अफशरुबाब सैयद ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और अमन का दारोमदार बेहतर निज़ाम तालीम और तरीक़ा तदरीस पर मुनहसर है। हमारी अव्वलीन तरजीह है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के स्कूलों में तालीम का मयार मजीद बुलंदी की तरफ ले जाया जाए। इसके लिए हुकूमत के साथ साथ समाजी तंजीमों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। मिलजुल कर ही निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। डॉक्टर अफशरुबाब सैयद ने कहा कि हमारी भरपूर कोशिश है कि तालीम को ज़िला जनूबी की पहचान बनाए, क्योंकि तालीम याफ्ता माशरा ही मुल्क और कौम को सही मायनों में तरक्की की मनाजिल तक ले जा सकता है। कहा कि हमारा मिशन है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के हर घर में तालीम को आम किया जाए, ताकि तलबा और तालबात दौर जदीद की तरक्की की रफ्तार से हम आहंग रहते हुए बेहतरीन तलबा की सफ में शामिल रह सके। उन्होंने बताया कि इस जमन में सदर के इलाके में 11 साल से बंद गर्ल्स बॉयज मॉडल एलिमेंट्री स्कूल 49 की तज़ीन व आराइश के बाद दोबारा फाल करते हुए स्कूल का नाम DMC जस्टिस स्कूल करने के लिए कौंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहली से 8वीं जमात के लिए दाखिलों का आगाज हो गया है। स्कूल में तलबा का दाखिला मुफ्त और किताबें फ्री फराहम की जाएंगी। अब इलाके के वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें। एडवोकेट नदीम शेख ने तवील अरसे से बंद स्कूल की बहाली पर एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशरुबाब सैयद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अहलियान सदर उनके इल्म से मोहब्बत को हमेशा याद रखेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि मानसून बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि दौरान बरसात पानी की निकासी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट न हो। नालों पर बाउंड्री वॉल बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती जाहिद हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई को मुमकिन बनाने के लिए जिला वस्ती से गुजरने वाले बरसाती नालों का दौरा किया। उन्होंने 7000 रोड नाला, नागन चौरंगी नाला, शादमान टाउन नाला, कलंदरिया नाला और दीगर छोटे बरसाती नालों की सफाई के कामों का मुआयना किया, ताकि मानसून से कबल बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि बारिश का पानी सड़कों पर जमा होकर आवाम के लिए परेशानी का सबब न बन सके। इस मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर अहमद, एक्सीएन B&R फैसल सगीर भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जाहिद हुसैन ने अफसरान को हिदायत की कि जल्द अज जल्द नालों की सफाई के कामों को मुकम्मल किया जाए, ताकि दौरान बरसात पानी की निकासी के अमल में किसी किस्म की भी रुकावट न हो। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि फराहमी आप के हवाले से हुकूमत सिंध ऐसा अंदाज से इक़दाम कर रही है जिससे शहरी इलाकों के साथ जिला कौंसिल के इलाकों को भी पानी वाफिर मिकदार में दस्तियाब होगा। मरकजी ऑफिस में मुतवक्की बरसात के हवाले से होने वाले इजलास के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा कि फराहमी आप के लिए जिला कौंसिल ने इंतहाई अहम इक़दाम किए हैं, जिसका फ़ायदा यहाँ के रिहायशियों को मिल रहा है। बारिश की आमद मुतवक्के है, क्योंकि मौसम गर्मा में बरसात का तवील स्पेल होता है। हमने
اس حوالے سے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اگر اس سال موسلا دھار برسات ہو جاتی ہے تو یہاں کے ڈیم بھر جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس کی وجہ سے زمین کے بالائی سطح زرخیز ہو جائے گی اور اندرونی طور پر پانی کی سطح بھی بلند ہو جائے گی، جس سے ہماری حدود میں خوشحالی آیا ہوگی۔ پانی زندگی کا اہم جزو ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کسی مسئلے کی اہمیت ہے تو فراہمی آپ کی، اس کے لیے ہر ذمہ دار پانی کے حوالے سے عملی اقدامات کر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی سید محمد علی زیدی اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور نے مختلف زونز میں برساتی نالوں کا دورہ کیا اور تربیتی مشقوں کا جائزہ بھی لیا۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی سید محمد علی زیدی اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور نے مختلف زونز میں برساتی نالوں کا دورہ کر کے صفائی و ستھرائی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ متوقع مانسون بارشوں سے قبل ہنگامی بنیادوں پر برساتی نالوں کو صاف کیا جائے تاکہ عوام کو بارشوں کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر سید محمد علی زیدی کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں تمام برساتی نالوں کی صفائی سے بارشوں میں عوام کو سہولیات فراہم ہوں گی۔ جی منسٹر لوکل گورنمنٹ سید ناصر حسین شاہ صاحب، بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب، ایڈمنسٹریٹر کراچی سعید غنی صاحب کی ہدایت پر کمیشن کراچی نے لاسٹ ویک ایک میٹنگ کنڈکٹ کی تھی پری مونسون کے حوالے سے، تو آج ہم نے اس کی موک ایکسرسائز کی۔ آپ نے دیکھا ہمارے ڈی واٹرنگ پمپ بالکل تیار ہیں، مشینری ہمارے تیار ہے، ہمارا جو ہے اسٹاف بھی تیار ہے۔ ان کیس اگر بارشوں میں کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو ہم اس کے لیے آلریڈی پریپیئرڈ ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور کا کہنا تھا کہ بلدیاتی سطح پر جامع منصوبے کے تحت ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، برساتی پانی کی بروقت اور بلا تعطل نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ آج مرتضی وہاب صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب منسٹر بلدیات اور اس کے علاوہ کمشنر کراچی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک موک ایکسرسائز رکھی تھی، جس کے اندر ہم نے پورے ضلع میں جو تیاری کی ہوئی ہے مونسون سے نمٹنے کی، اس کے علاوہ جو طوفان یا آندھی اگر آ جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے جو ہم نے مشین موبلائز کی ہے، جو ہمارے پاس لوگ ہیں ان کو ہم نے تیار کیا۔ تو آج ایک ایکسرسائز رکھی گئی تھی کہ اگر برسات ہو جاتی ہے یا آندھی آ جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ دورے کے دوران بلدیہ کورنگی انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی کہ برساتی نالوں میں کچرا پھینکنے سے گریز کریں اور نالوں میں کچرا اور ملبہ ڈالنے والوں کی نشاندہی کریں تاکہ باہمی تعاون سے صفائی و ستھرائی کے اقدامات کو بہتر کیا جا سکے۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ اور بلدیہ کورنگی کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے اسٹار گیٹ اور دیگر برساتی نالوں کی موجودہ صورتحال اور تربیتی مشق کا جائزہ لیا۔ اس اور نالوں کی صفائی کے دوران نکلنے والا کچرا اور ملبہ فوراً اٹھانے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی کے ہمراہ اسٹار گیٹ اور دیگر برساتی نالوں کی موجودہ صورتحال اور تربیتی مشق کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ مونسون کی متوقع بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے بچاؤ اور بارشوں کے دوران عوام کو مشکلات سے بچانے کے سلسلے میں بلدیاتی سطح پر جامع منصوبہ بندی کے تحت ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہماری اولین ترجیحات میں برساتی نالوں کی صفائی شامل ہے تاکہ برساتی پانی کی بروقت اور بلا تعطل نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میں 100% سیٹسفائی ہوں کیونکہ ڈی سی صاحب پرسنل دلچسپی لے رہے ہیں اور ہر موقع پہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آن فیلڈ موجود ہیں، ایک ایک نالا چیک کر رہے ہیں، ایک ایک جگہ جہاں بھی ہم نے چوکنگ پوائنٹ کی نشاندہی کی وہاں ڈی سی صاحب نے خود جا کے دیکھا اور انہوں نے اس پہ موقع پہ ہی ہدایت بھی جاری کی۔ ابھی بھی انہوں نے کچھ ہدایت جاری کی ہیں جس میں انشاءاللہ کل سے کام شروع ہو جائے گا، تو میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہمیں یہاں پرابلم نہیں آئیں گی۔ ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام، ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ بلدیہ ملیر جمال عباس، ایس ای واٹر اینڈ سیوریج بورڈ محمد ظاہر، ایکس سی این راشد اختر کے اعلیٰ اسٹاف اور آفیشیل اور دیگر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔